Yeah. Please open a video. That would be great. I'm Actually, not. the internet connection is low, so it's not letting me turn the Internet video connection is on. low today also. Yeah, I don't know, the Wi-Fi is not working, so I'm using the hotspot. Okay. चलो फिर ठीक है. Not an issue. Okay. So we will continue with that. But ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आपका बहाना जो भी है, ठीक है? Because video is compulsory in this classes, ठीक है? Because it makes another impact. Okay? Is it fine? आप उसको correct कराओ. Technician जो भी है complain करके उसको correct करवा लो. Okay? Because हम ज़्यादा classes, because मेरी सारी classes में आप देखते होगे videos on रहते हैं. You can ask with the students. जो आपके friends हैं, you can ask it. उनकी भी videos on रहती है. It's not only for Yeah. you. It's compulsory. Video is compulsory. ठीक है? चलो. So now we are going to start with the light. So first of all, I would like to ask, what is light? What is light? Uh, Okay, चलो. like the definition. No, I'm just asking concept. चलो मैं actually बता देता हूँ. Light we have divided in two parts: reflection and refraction. If you can see here, right? Yeah. Okay. So first of all, I'm just going to ask you what is light. So I'm just uploading here a few points. You can see in this. Can you see that? Yeah. You can see I have already मैंने इसको नीचे scrolling कर रखी है main points को. So can you read that please and read loud with energy? All the points. Yes, please all the points. Light is a form of energy which helps us to see objects. Hmm. When light falls on objects, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the objects. Correct. Light Okay, fine. travels. In a straight line. Okay, you can stop now. So what we have understood about it, we understood that the light is a form of energy, right? Okay, now you tell me what you have heard about heat energy, kinetic energy, potential energy, right? Yeah. In the same way also, light is also a form of energy, correct? Now, the question is, how we can see the objects? Yeah. How we can see the objects? आपके रूम में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है? आप उसको कैसे देख पाते हो? ये बताओ. लाइट ऑफ हो जाती है रूम में, तो क्या आप उन Yeah. चीजों को देख पाते हो? नहीं. नहीं देख पाते. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये था, हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. इज इट दैट कि ये डायरेक्ट मान लो कि ये जो बल्ब है, बल्ब जला तो बल्ब सीधे हमारे आईज पर लाइट भेजता है एंड देन वी कैन सी द सोफा. इज इट लाइक दैट? No. Please speak little loud. I cannot hear you. No. No. Then what? How we can see the objects? Tell me. The light rays fall on the objects. Yes. And The light rays will fall on the objects. So you can see sunlight is falling on the flower, and from the flower, the reflection goes to our eyes, right? And then our eyes think that, oh, there is a flower. Then our eye thinks what? Oh, there is a flower, right? So basically, we can see here, what? We can see that the light falls on object and then it reflect goes to the eyes, right? And then we can see the objects, right? I think somebody else is also joining. Okay. Is your mother? I don't know. Just let me ask who is. Okay. Give me a second. Or you have joined with another tab or system. Who has joined this? Give me a second.
Okay, I think gone. Okay, fine. We can leave that. Okay, so what I was talking here, that light will fall on the object and then the reflection goes to the eyes and then we can see the object. Is this clear with you, right? Yeah. Now the question is, ये लाइट जो है आपके, अच्छा आपके रूम में जैसे जस्ट एक एग्जांपल, आपके पास फोन होगा, आपके पास लैपटॉप है रखा हुआ, आपके पास टेबल है, चेयर है, राइट? क्या सभी का कलर सेम दिखता है क्या? All the colors are same? No. No, but लाइट तो एक ही लाइट जल रही है आपके रूम में, सभी के लिए अलग अलग लाइट आपने जलाया हुआ है क्या? नहीं. नहीं. You have just switch on your tube light or whatever the light is, आपने बस उसको जला दिया, राइट? तो मुझे ये बताओ कि आपका टेबल, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका जो भी आइटम जो भी रूम में रखा हुआ है XYZ, सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों दिख रहे हैं? What is why? Because okay, because we can't really see the light, but the light is it has different colors in it itself, Okay, okay. which to us look white. Like ठीक if है. you look at the sun or at a tube light or ओके, something. सिंपल सी बात, आप धूप में जाते हो, राइट? सनलाइट में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहन के जाते हो ना, राइट? Yeah. सब लोग तो एक ही कलर के कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, राइट? सभी पर सनलाइट ही आप पड़ती है. तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि हाउ वी सी दैट वो लड़का दूसरा कलर का कपड़ा पहने हुए है, वो मैम Because दूसरे. the light reflects different colors. हाउ मेरा क्वेश्चन है हाउ, क्योंकि सनलाइट तो सबके लिए बराबर है. सनलाइट, सन बोलता है क्या, अच्छा तुम्हारे लिए मैं अलग लाइट भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए अलग लाइट भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए अलग लाइट भेज रहा हूँ. डज सन सेज दैट? सनलाइट तो सेम है, करेक्ट? व्हाइट लाइट जो आपने बोला, यहाँ देखो मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है व्हाइट लाइट. इफ यू सी हियर, कैन यू सी दैट? Yeah. सनलाइट से तो व्हाइट But लाइट ही that आएगी. white light has different colors, which No, it no. Actually, it's depend upon the material. It's depend upon what? The material. हम हम हर ऑब्जेक्ट पे पेंटिंग करते हैं. क्या करते हैं? पेंटिंग, राइट? व्हाइट लाइट जब वो फॉल करता है तो इट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट, इट एब्जॉर्ब oh all the yeah. light and reflect only that we have painted. यहाँ मैंने ग्रीन इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये फ्लावर नीचे में ग्रीन है, राइट? जो ये प्लांट है नीचे में ग्रीन है, so due to that it reflects the green. वो सिर्फ ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है. नाउ यू कैन सी the same light is falling on the sofa and sofa is red, so red is reflecting to her eyes. तो इस गर्ल को, इस मैम को जो है वो But रेड दिखाई दे रहा है. actually, Yes, tell me. the thing is that the sofa is not actually red. मैंने It लिखा हुआ है रेड, इट्स yeah, मैरून कलर. ठीक है, आप यू नो. it looks red because the only color reflected is red. Yes, right. So The actually, it reflection. doesn't depend on the No, is painting. color What? of the. No, what the paint we will do that. Based on that, it will reflect that one. Yeah. Okay. तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देता है. हमें रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देता है. But actually, वो paint भी नहीं matter करता because even the paint isn't red. It just appears red. It appears red, right? तो वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रिफ्लेक्शन देता है हमें वो दिखाई देता है, और हम तब कहते हैं कि वो रेड है, वो ग्रीन है, वो ब्लू है, वो येलो है. करेक्ट? Yeah. Okay, so do you understand how we can see the object? Yeah. Any doubt in this? No. Okay, coming to the next part of it. तो अभी आपने सीखा what is light and you have learned how we can see the objects. Am I right? Yeah. Okay. Now can you tell me what is luminous object and non-luminous object? Luminous. Yes. One second. Yep, tell me.
ये तो आपने ग्रेड 8 में पढ़ा होगा. I'm just trying to remember the like Okay, याद definition or करो चलो. something. हम्म. Okay. Yes, tell me. Yeah, luminous objects, I think, are objects which can, make their own light, which don't need a different light source. Yeah. Okay, that means जो खुद से light generate कर सकता है. Yeah. Right? Simple सी बात. The And source non-luminous are objects which need light. which does not generate light. Yeah. Simple, which does not generate light. So यहाँ पे मैं एक चीज अपलोड करने जा रहा हूँ. Just look at here the red lines which I have underlined. मैं अभी आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ because you can write it down later. Okay? मैं ये PDF notes भेजूंगा and whatever I have underlined you can note down. And don't worry, in class also मैं note down कराता हूँ. Don't worry about it. But today you can take relax little bit. So for the non-luminous, you can see here, I have told here, those objects which does not emit light. Does not emit light means, but it can reflect the light which falls on them. That are known as non-luminous. And luminous is what? Luminous is just opposite, which can generate the light, which can produce the light. Understand? Yeah. Okay. Now I have one question here. Yeah. I have one question. Just give me a second. Do you understand the luminous, non-luminous, right? Yep. Okay. Give me a second. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं एक आपको इमेज दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है. Can you see this image? Yeah. हम लोग कहते हैं ना मूनलाइट. Yeah. ये मूनलाइट है, राइट? ये लाइट कहाँ से आ रहा है हमको? मून से. It's actually not from the moon. Okay. तो फिर the moon is a non-luminous object. It's just reflected sunlight which appears to look like right, moonlight. correct. ये मेरा यही question था. Okay, good, very well. So moon is a non-luminous object, but फिर भी light ये देता है. कैसे? Because it reflects the light. Because it's reflect the light. So I will upload one image here. Can you see that? Yeah. In this image, so many examples I have given you. If you see here, I have told sun is what? Sun is luminous object. You can see luminous object emits light on their own, right? Yeah. And non-luminous means the object which does not give out the light, like moon, tree, hands, even earth. Earth का भी अपना light नहीं है, correct? Yeah. अच्छा एक बात बताओ, अर्थ ब्लू क्यों दिखाई देता है? Because of the oceans. Okay, good. ठीक है, चलो. And we know that moon reflects the sunlight to the earth, right? Yeah. And it's non-luminous object. Okay, चलो अच्छी बात है. एक बात बताओ, आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर? साउंड 9th में नहीं था. मतलब गजब है, 9th में ही गायब कर देते हो आप सारी चीजें. जो चीजें अच्छा हाँ था. हाँ, राइट. अच्छा, साउंड चैप्टर पढ़ा है ना आपने या नहीं पढ़ा? Yeah. I don't think we did it. Okay. इसलिए I don't remember. मैं टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. I'm just going to ask one thing कि नॉर्मली आप घर में आपस में बात करते हो, राइट? Yeah. तो आप कुछ भी कहते हो तो आपके जो भी आसपास जो भी लोग हैं, लाइक मम्मा पापा या जो भी whatever people you have in nearby you. अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक. तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को. मैं नॉर्मल कंडीशन कि आप घर में बोलते हो, आपके मम्मी पापा उसी रूम में मान लो बैठे हैं जहाँ आसपास हैं, they can hear you easily, correct? Yeah.
when you will go in water, water means, do you know swimming? Yeah. Okay, you know that. अगर आप पानी के अंदर जाते हो और स्विमिंग कर रहे हो, that means you have taken the dive, and if you will say something, is it possible कि वो सामने वाला सुन लेगा easily? Is No. that? No, he can, he or she can, but it will be, Because yes, tell me. I don't know if I'm right, Hmm. but sound waves travel. Travels in a medium. इन Yeah. मीडियम। मेरा क्वेश्चन अभी यहीं पे आने था कि आपने करेक्ट किया इस चीज को, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही था कि पानी में भी जब हम जाते हैं और अब हम बात करते हैं इनसाइड द डाइविंग, मैं ऊपर नहीं कि पानी में गर्दन बाहर निकाल के बैठे हैं देन वी आर टॉकिंग, वो तो एयर हो जाएगा, राइट? पानी के अंदर इफ यू विल गो इनसाइड द वाटर एंड इफ यू से समथिंग, पीपल कैन हियर यू, बट वो उतना नहीं सुन पाते जितना हम एयर में, एयर मतलब जो हमारे पास अभी इन्वायरमेंट है हमारे पास, ये क्या एयर है, राइट? तो आप एयर में जितना सुन पाते हैं उतना नहीं सुन सकते हैं, दैट इज करेक्ट, बट हम सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, nobody can hear you. Because it's vacuum. It's a vacuum. ऐसा क्यों? Because मतलब? for the ऐसा क्यों क्यों नहीं सुन पाते हैं? Because हमको vacuum, ये man. Vacuum is not a medium. Vacuum is not a medium, right? So for travel of sound, we need material Yeah, medium, but not for light. but not for light. Good. तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है for propagation, इसको क्या नाम देते हैं हम? Propagation of light. We do not need any material medium. Understand? इस पॉइंट को प्लीज आप नोट कर लो, इट्स VVI पॉइंट। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी चीजें। For the propagation of light, we do not need any material medium. उसी के नीचे लिख लेना, but for sound, we need material medium for traveling of sound. Yeah. Because these basic concepts should be clear. जब तक ये clear नहीं होंगे तब तक problem होती रहेगी। Done. Done? Okay. चलो आओ। अब यहाँ पर एक very very important thing जो मैंने यहाँ पे already लिख के दे दिया है। What is the speed of light? 3 into 10 to the power 8. And please make a note in this. This is the speed of light in air. Meters. Oh. No, in air. Or Yeah, you can say, vacuum. Vacuum or air, but yeah. But in the water, in the glass. 4/3, I think. No. It's not. 2/3. No. Either in glass or in water, ऐसा कुछ I will था। tell you. मैं बताऊंगा. Wait. पहले इसको लिख लो for your general knowledge. अभी अब मैं बेसिक करा रहा हूँ, तो ये बेसिक वाला देखो। मैं ग्लास और उस पर मैं आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? ग्लास सभी पे मैं आऊंगा। ओके, सो यू आर डन विद योर टिल दिस पॉइंट। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एनीथिंग? नो। ओके, चलो हम आगे चलते हैं फिर। Now the next we have to learn the concept of reflection. यहाँ से हमारा, यहाँ तक हमने बेसिक चीजें सीखी थी, and I moved little fast because आपके पास थोड़ा सा आइडिया था, ठीक है? Now I am going to start with the topic reflection of light. वर्ड में याद रखिएगा रिफ्लेक्ट, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, and we have to do refraction also. Two things. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्डिंग्स में, so I am doing a reflection here. What do you mean by reflection of light? When light bounces back. When light bounces back. Yeah. Okay. Bounces back का क्या मतलब होगा? Reflects. Reflects. Good. So now you can see here in this image I have already uploaded. What is the definition of the reflection of light? Can you just read the underline? Red color When underline. light, the underline part. Yes.
The process of sending back the light rays which fall on a surface of an object is called reflection of light. Okay. So I don't think इसमें मुझे ज़्यादा कुछ explain करने की जरूरत पड़ेगी, right? Hmm. Okay. But just give me a second. मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ. Wait a minute. One second. Hmm. Mhm. Okay. I'm just going to share with you. Can you see something? Yeah. Okay. यहाँ पे क्या रखा हुआ है? What we have here on the table? A mirror, I think. एक मिरर रखा हुआ है, एक हमारे पास टॉर्च रखा हुआ है. Torch is what? Torch is just source of light. Yeah. Correct? Yeah. Okay. Now you can see what will happen. Can you see that what happened? Yeah. So here I will just show you again कि यहाँ पे टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट जो था उसने लिया और जस्ट उसने क्या किया यहाँ पे source of light दिया. Due to the mirror, it's going to reflect back, right? So just come to our slide now. Okay. So okay. So you can see in this example also, वहाँ तो मैंने practically करके दिखाया कि कैसे होता है, right? Now you can see in this example, which is already given here, sunlight is बच्चे पे आ रही है, right? And then due to the mirror, it's going back. Due to the mirror, it's going back. Okay, I just want to show you something more. Give me a second. Give me a moment. Yes. Okay. 1 second. It's stuck now. Okay. It's a little stuck here. Wait a second. It should play. Yes. Can you see something here? Can you see something? Hello? Yeah. Now you can see what is happening. It's a source of light. If you see that, यहाँ पे जो ये cartoonist जो भी है, इसने क्या किया? ये light इसको send किया, right? So it is what? It is just a source of light. If you see here, can you see that? ये source of light यहाँ जा रहा है. अब देखो ये क्या करता है. Okay, I will just increase it. Yes. Now, okay, wait. इसको यहाँ you got the idea. Okay. Now you can see from here. Okay. Yeah. देखो यहाँ क्या हो रहा है. Can you see that? Yeah. वापस से देखो. यहाँ पर देखो ये बॉय जब तक यहाँ पे है ऊपर से क्या आया. ऊपर से हमारा सोर्स ऑफ लाइट आया. क्या आया हमारे पास? Source of light. सोर्स ऑफ लाइट. ये यहाँ आ रहा है. क्या ये रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्या अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या इसमें? हाँ, आई डिडंट हियर यू. नहीं, क्यों नहीं हो रहा रिफ्लेक्शन? Because there's no reflective surface. रिफ्लेक्टिव सरफेस से क्या मतलब है? Like a surface. सरफेस तो हमारे पास है. If I see that, if I see here, we have the surface. ये तो ground है ना हमारे पास जी. But it's not reflective. Okay, so what do you mean by reflective? मेरा क्वेश्चन वहां पे आता है. A smooth, shiny surface. Yes, good. Smooth and shiny surface, that is known as reflective surface, right? Yeah. तो देखो मैं I will just rub everything. देखो क्या होता है यहाँ पे. जैसे ही ये लड़का shiny surface इस लाइट के नीचे लेके आएगा, देखना क्या होगा. You can see. Can you see that? What's happening? Yeah. So this is what? This is the due to the mirror. Now you can see in this one they have already explained how
the light is falling and then it's going back in the same medium. You can see it. It's incident ray, right? And Yeah. after that, they have mentioned that. I will just show you. You hear it goes reflective. In video, Yeah. देखो video में करके हमने practically देखा है, right? Now coming back to our PPT. Okay, so here with the help of the practical example, we also understand the bouncing back of light is reflection, right? अच्छा, bounce back होके कहाँ जाता है ये? मेरे घर आ जाता है, आपके घर आता है, नहीं। कहाँ जाता है? बाउंस बैक होके Back. सेम मीडियम में, एयर Yeah. में आया तो वापस एयर में चला जाएगा, राइट? Yeah. So bounce back in same medium, bouncing back of light in same. मैंने यहाँ mention नहीं किया है, but it should mention that bouncing back of light in same medium. That is known as reflection of light. कोई doubt है इसमें? नहीं। कुछ पूछना है? नहीं। Okay. For reflecting surface, जो आप बोल रहे थे reflecting surface. So the reflecting surface should be the object that should be polished, shiny surface, and that reflects more light than the object which is unpolished and dull surface, right? तो इस बात को याद रखना कि reflective surface जो है वो आपका shiny polished surface होना चाहिए, otherwise वो reflection नहीं करेगा. Is it clear that? Yeah. Okay, good, बहुत बढ़िया. अब एक बात बताओ, आपके घर में विंडो है ना, राइट? हाँ. विंडो, ग्लास विंडो होगा, राइट? Hmm. I just want to show you. Give me a second. No. Okay, wait. I'm just going to tell you. Okay, I'm just taking image. Just suppose that ये वाले image में यहाँ पे glass है. ये वाला glass में ले लेता हूँ. Copy and paste. Can you see that? Yeah. ये एक विंडो है जिस पर ग्लास लगी हुई है, राइट? Yeah. ये नॉर्मल ग्लासेस हैं, करेक्ट? Hmm. हम इस ग्लास को मिरर कैसे बना सकते हैं? हाउ वी कैन मेक अ मिरर? We can put a shiny, smooth, Okay. silver or aluminium राइट, sheet on one side. सिल्वर एंड एल्युमिनियम. और क्या कर सकते हैं? Any similar material which is shiny and smooth and ओके, yeah. We can. I don't know if people do it, but maybe you can use gold. मे बी यूज Gold. गोल्ड. नहीं, गोल्ड नहीं होगा. क्यों? Okay. though? It's smooth and shiny. नहीं, उससे नहीं, ऐसा नहीं कि स्मूथ एंड शाइनी. लॉजिक है. ओके, Okay. हम क्या करते हैं बेसिकली, जो ग्लास हमारा होता है, कभी आपने ग्लास ब्रेक करके देखा है उसके पीछे क्या लगा हुआ होता है? हैव यू एवर ट्राइड? No. मतलब घर में जैसे हमारे पास ये देखो, आई विल जस्ट शो यू वन थिंग. घर में हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट मिरर हर के घर में होते हैं, राइट? लाइक दिस, कैन यू सी दैट? Yeah. यू हैव सीन इट. अब मेरा कहना क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे, इफ यू सी दैट, इसके पीछे ये एक नॉर्मल ग्लास होता है. पहले क्या होता है? ये ग्लास. इसके बैक साइड में ऐसा क्या कर देते हैं हम कि ये मिरर बन जाता है? व्हाट वी डू? दैट इज माय क्वेश्चन. Put a ये नॉर्मल sheet. ग्लास था जो आपका विंडो ग्लास था, राइट? और उसको Yeah. मुझे मिरर बनाना है. मैं ऐसा क्या करूं कि ये मिरर बन जाए? Put a sheet of व्हाट काइंड ऑफ silver शीट? or aluminium. Smooth, reflective. ओके, नो, Right आई विल sheet. टेल. वेट, देखो ये सब चीज ही जो हमें जाननी है. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड वन थिंग. ओके, Hmm. आप कुछ भी नहीं, वो जैसे आपने गोल्ड बोला ना, गोल्ड नहीं कर सकते. गोल्ड will not do that. Okay, now you can see here, silver metal is one of the best reflector of light. Can you see that? Yeah. Silver metal.
तो हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे ये मिरर दिखाया, तो पहले ये ग्लास था, पहले क्या ये था, ग्लास था। Glass. इसके बैक साइड में, पीछे वाले साइड में हम क्या करेंगे, हम एक कोटिंग चढ़ाएंगे। कोटिंग यू नो, पेंटिंग, नॉर्मल पेंट कर देते हैं बेसिकली, Yeah. राइट। और वो कैसी कोटिंग होगी, आई विल जस्ट टेल यू राइट नाउ हियर। We will do the coating of, you can see ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of the plain glass sheet. The silver layer is then protected by the coat of red paint, okay, and the reflection of light in the plain mirror takes Wait, place. what paint? रेड paint. रेड पेंट, यस। आप मिरर को है ना, आपके घर में मिरर जो लगा होगा उसको वैसे ब्रेक मत करना, हाथ वगैरह कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई टूटा हुआ आप देखो, वैसे मिरर टूटा हुआ घर में नहीं रखना चाहिए। एज मेरी मदर बताती थी कि टूटा हुआ मिरर घर में नहीं रखते, अच्छी बात नहीं होती, इट्स नॉट गुड, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग, बट इफ आई गो फॉर साइंटिफिकली, तो इसके पीछे क्या करेंगे हम, इसके पीछे में हम सिल्वर कोटिंग पहले करते हैं, राइट, एंड देन वी डू द रेड पेंट, ओके। गोल्ड वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, जो ग्लास है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है और वो रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर दैट? Yeah. ओके अब ये बात हो गई, मतलब दो चीजें करते हैं हम, क्या करते हैं, एक सिल्वर कोटिंग और एक रेड पेंट। देखो मैंने पॉइंट्स में बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। Yeah. अच्छा अब ये जो मिरर जो मैंने यहाँ दिखाया था, तो अगर आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे ड्रॉ द मिरर, तो क्या आप ये मिरर बनाओगे? नहीं. कौन सा मिरर बनाओगे? हाउ यू कैन रिप्रेजेंट, दिस इज द वे ऑफ ड्रॉइंग मिरर, कैन यू सी दैट? Yeah. यहाँ मैंने राइट में देखो बना के भी दिखाया। अगर कोई आपसे बोलेगा मिरर रिप्रेजेंट करने के लिए, यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड यू विल डू दिस हेजिंग। ये हेजिंग का क्या मतलब है, दैट इज द पेंटेड पोर्शन। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन कौन हो जाएगा, दिस साइड विल बी द रिफ्लेक्टेड पोर्शन, Yeah. अंडरस्टैंड। जिस साइड हेजिंग होगी उसके अपोजिट साइड का जो सरफेस होगा वो मिरर का काम करेगा और वो हेजिंग वाला पेंटेड वाला रहेगा। इज इट क्लियर दैट? Yeah. अभी तक हमने जो बातें सीखी कि लाइट क्या होता है, लाइट ट्रेवल कैसे करता है, व्हाट इज ल्यूमिनस, व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस, what is reflection of light, and how we can make a glass into a mirror. Is it clear that? Yeah. कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं. मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, अगर कोई Okay. डाउट है तो आप यहीं पे क्लियर कर दो, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास मेरी आदत है जो मैं पहले पढ़ाता हूँ वो मैं पूछता एंड देन मैं पढ़ाता। तो अगर कुछ डाउट हो रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मुझे आप बताओ। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देके बता सकता हूँ। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क राइट नाउ? No. नो, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम ग्लास को मिरर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो हमें ग्रेड 10 में यूजफुल आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंसिडेंट रे? So you can see with the example I have already shown here, हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, यहाँ पे मिरर है, राइट? Yeah. अच्छा मुझे लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ओके। अदरवाइज इट टेक्स टाइम लिटिल बिट टू राइट। तो ये मिरर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड व्हाट इज दिस? The source of The light. source of light। तो सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट फॉल होगा, करेक्ट, दैट वी कॉल व्हाट, दैट वी कॉल इंसिडेंट रे। मैंने अभी एक पिछले वीडियो में आपको करके भी दिखाया था कि वो टॉर्च कैसे वो लाइट फेंक रहा था, राइट, दैट मींस व्हाट थ्रोइंग द लाइट, सो दैट वी कॉल इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट्स दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया मिरर, right? So the ray of light that falls on the reflecting surface, that is known as incident ray. Then what is reflected ray? जो वापस चला जाएगा bounce back होके, right? So reflecting surface is the ray of light that sent back by the reflecting surface. मतलब एक जो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, that is called incident ray. जो दूसरा लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है,
दैट इज बाउंसिंग बैक होके रिटर्न जा रहा है, एंड रिटर्न वो कहाँ जा रहा है, अपने घर नहीं जा रहा, सेम मीडियम में जा रहा है, राइट? दिस इज द मीडियम, हियर वी हैव एयर, हियर व्हाट वी हैव एयर, एंड यहाँ भी तो एयर ही होगा मीडियम में, वाटर कैसे आ जाएगा, वाटर नहीं आएगा, राइट? So it's coming from the air, it's going inside the air. So that we call what? That we call reflection. So do you understand what is incident ray and reflected ray? Yeah. ये दो points clear है यहाँ पे? Yeah. Okay. Now you tell me what is normal? Normal is the ray, that the invisible ray between the incident ray and reflected ray, which is at Oh my God. Between the incident ray and no, okay, not between, but what? it's positioned such that Okay. it makes a 90-degree angle. Oh yes. Now you come to the point. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, वो बात सही है आपकी, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल केस। नॉर्मल बस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री एक लाइन बनाता है। दैट यू कैन से नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैन यू सी दैट? Normal is what? Normal is just perpendicular to the reflecting surface. You can see I have drawn many reflecting surfaces here. Can you see that? Yeah. Normal क्या हो गया? ये अगर reflecting surface हमारा इस angle पे है तो normal 90 होगा उसके. If my reflecting surface is like that, तो normal देखो ऊपर की तरफ जा रहा है. If my reflecting surface is like this, तो normal देखो उसके according 90 degree बना रहा है, right? So normal हम basically कह सकते हैं it is nothing but perpendicular to reflecting surface. अब ठीक है ना, सॉरी सरफेस। अब ठीक है, इंसिडेंट रे उसके बीच में वो सब आ जाता है, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल की प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल का क्या काम है? नॉर्मल शुड बी 90 डिग्री, बस उसका काम ये है, राइट? Already you can see the definition also. The normal is a line at a right angle to the reflecting surface. Correct? Yeah. तो तीन चीजें हमने सीखी। What incident ray सीखा, reflected ray सीखा, normal सीखा। Now what is point of incidence? It's the point where all three rays meet. It is a point, yes, it is a point where all three rays meet. Correct? Yeah. Good. That is the point of incidence. Right? Yeah. चलो, ये तो बहुत आसान था, तो आपने बता दिया मुझको। So we will move now. Now I just want to ask you, what is angle of incidence and what is angle of reflection? Angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. Good. And angle of reflection is the angle between the normal and reflected ray. Good. And perfect. They're equal. Perfect. बहुत बढ़िया आंसर। So you can see मैंने भी यहाँ अपलोड कर दिया है, you can see that, right? And you can see मैंने ये इंडिकेट भी कर दिया है कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट? और एक यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है कि I is equals to R होता है, राइट? Yeah. एंड ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? बिकॉज़ ऑलरेडी यू नो दैट। चलो तो आगे चलते हैं। So right now you are feeling that I'm moving fast, but you know that's why I'm moving fast. चलिए, so हम आगे देखते हैं। Okay. Yeah. Now what is laws of reflection? Laws of reflection. There are three. Three? No, sorry, there are two. Right, I have heard, yes, two. One, the first is that all three, the normal, the incident ray and the reflected ray, are in the same plane. Good. The second is that the angle I, which is angle of incidence, is always equal to angle R, which is angle of reflection. So you can see I have shown with the examples also. ठीक है, यहाँ देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी मैंने दिखाया है, एंगल्स भी दिखाए हैं, और आपको मिरर और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों चीज आप जानते हो, सो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम हियर। ओके,
चलिए, तो बहुत बढ़िया, इसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं है, यू नो द लॉज, ठीक है, तो लॉज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सो वी कैन मूव। Yeah. ओके, गुड गुड। चलो, ओके, नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप बोलोगे सर आपको बस ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है, क्यों प्रॉब्लम लेके क्यों बैठे हो, बट दिस प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू। कैन यू सी द प्रॉब्लम? Yeah. कैन यू रीड एंड कैन यू सॉल्व? An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? Yes. Please solve it. Quick, you have only 1 minute for it. Wait, the angle it makes the angle with the surface of the mirror. Yes, it says in the question. Question is सबसे लिखा हुआ है. Okay. यानी ये सबसे इजी और आसान क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि चैप्टर पढ़ा हुआ भी है और अभी भी आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे बताया भी है, यू नो दैट, so apply the concept here. 35. मतलब You are, yeah, tell me. the reflected would also be 35. You are absolutely wrong. 35 नहीं होगा. Actually यार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? because वो मिरर के सरफेस के साथ है, नॉर्मल के साथ नहीं। राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इफ यू सी द फिगर, इफ यू सी द फिगर, यहाँ ध्यान दो, Yeah. ये एंगल दे रखा है मुझको, कैन यू सी दैट? Yeah. बिकॉज सरफेस के साथ बना रहा है ना वो 35 डिग्री, इसने ये थोड़ी ना बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, ऐसा बोला क्या इसने? नहीं बोला। We know that, अब ये मुझे 55 कैसे मिला? Because we know that this makes 90 degree. Can you see that? Yeah, 90 minus 35 ऐसे। Yes. तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 हो गया, तो एंगल I जो है वो 55 डिग्री होगा, तो एंगल R भी 55 डिग्री होगा। Do you understand it now? Yeah. समझ आया कैसे करेंगे? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना? चलो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, और मैं कोई कहीं बाहर से नहीं दे रहा हूँ, इट्स फ्रॉम योर सिलेबस, कोई बाहर से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रॉब्लम। कैन यू गो फॉर दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ? देखो ऑप्शन भी नीचे दे दिया है, 4 ऑप्शंस हैं, यू नीड टू सेलेक्ट द प्रॉपर। Yeah. Total angle between the incident and the reflected ray. We have a 120. 120. The answer is absolutely right. कैसे? How? Because if the angle between the mirror and the incident ray is 30, that means the angle, reflected angle and the incident angle will both be 60, and 60 plus 60 is Good. 120. Good. Your explanation is good. बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। Now I am giving another one. Go for it. Can you see the question? Yeah. Go for it. $90. 90. No, wait, 1 second. Incident. Yeah. A 90. Think one more time.
if the incident ray Hmm. Is what? okay, Okay, चलो मैं समझाता हूँ. Your time is up. Look here. will it be 0? कैसे? How? If the incident and the normal are at the same, like on the same thing, Right. Now you can then see the here. angle, yeah, Yes. Now you can see here. This is the normal. This is what? Normal. normal. अब इसने क्वेश्चन में बोला कि रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो प्लेन मिरर के साथ 90 बनाता है. राइट. तो प्लेन मिरर के साथ Yeah, अगर वो 90 बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया. कैन यू सी दैट? yeah, तभी तो ये 90 बनाएगा. राइट. yeah. सो इफ यू सी, आई विल जस्ट डू द डायरेक्शन हियर. इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नीचे की तरफ मैंने कर दिया है. तो मतलब हो गया कि इंसिडेंट रे इज मेकिंग 90 विद द सरफेस. तो एंगल आई कितना हो जाएगा यहाँ पे? एंगल आई तो 90. जीरो. I mean, sorry, जीरो होगा. 0. Because why zero? Because incident ray and Normal normal, के बीच में distance ही नहीं है. right, is same line. और Yup. सेम लाइन पे बनेगा तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा. जब एंगल आई जीरो हो गया, जब तो एंगल angle R भी आई 0. जीरो हो गया, तो फिर ये भी तो जीरो ही हो जाएगा. And it will return in the same direction like this. So all three will be on the same. Right. So यहाँ से एंगल आर भी जीरो हो जाएगा. Do you understand? Yeah. Okay, just give me a moment. One moment, please. I just want to show you something. Okay. Here I need to show you. एक second, hold करो. Okay, I think this is better. I'm just going to show you something here. Okay, can you see something here? Yeah. Okay, what is happening? I will just show you from the starting. ये देखो, can you see that? Yeah. जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे रिफ्लेक्शन भी उस हिसाब से बढ़ रहा था. एंड दे आर शोइंग विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट. राइट. तो ये इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए सोर्स ऑफ लाइट इन्होंने बना लिया है. राइट. तो ये सब इंस्ट्रूमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं. हम तो नॉर्मली टॉर्च या कुछ भी हम ले सकते थे. बट दे हैव टेकन सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, बिग इंस्ट्रूमेंट्स. सोर्स ऑफ लाइट के लिए, पॉइंट लाइट के लिए इन्होंने किया है ऐसा काम. एंड यू कैन सी दे हैव टेकन अनदर कलर लाइट. राइट. Okay, so I will just want to show you. Okay, they are showing that what is the angle of incidence and reflection. Now यहाँ पे आओ practical के लिए. Okay, can you see that how they are doing it? यहाँ पे देखो, यहाँ पे light जा रही है, right? So if you see here, the light is going. Oh, sorry. The light is going here, and what is happening? The reflection is coming in this direction. Can you see that? Yeah. The reflection is coming in this direction. and जैसे जैसे ये angle of incidence जो है वो कम हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हम नॉर्मल यहाँ पे ऐसे, ये लाइन यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ. कैन यू सी दैट? Yeah. और ये वाला एंगल हमारा यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल एंगल आई कहलाएगा. एंड दिस विल बी नोन एज एंगल. राइट. और ये देखो, ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, मिरर लेकर ये कर रहे हैं. Right. Okay, so I will rub everything and just look here what they are doing. Okay, so after that they have done the practical one. Okay. Okay, you can leave this. You need to watch it. ये देखो, ये जो practical example देखो, ये source of light बनाया है इसने.
and with the help of the pinpoint ये कर रहा है. Can you see that? And after Hmm. that they will do the measurements कि equal आता है कि नहीं. तो देखो इन्होंने कैसे equal बाद में देखो यहाँ प्रोजेक्टर रख के मेजर करेंगे. अभी वो नॉर्मल 90 सेट कर रहा है एंड देन बाद में वो देखेगा कि इक्वल आया कि नहीं आया. कैन यू सी दैट? Yeah. तो थ्रू दिस वे आल्सो वी कैन सी, ये देखो यहाँ पे बताया है इसने 35 डिग्री इधर आया एंड 35 डिग्री हमारा इधर भी आया. कैन यू सी? Hmm. So this is the practical way of understanding the law of reflection. Sorry, reflection. Got it? Yeah. Okay, चलो अभी इस पे नहीं चलते हैं, हम इस पे वापस आते हैं अपने. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर दैट? और अभी Yeah. अभी हमने वो एक्सपेरिमेंट भी देखा और वेरीफाई भी किया हमने एक्सपेरिमेंट में कि यस एंगल आई जो है एंगल आर होता है. प्रैक्टिकल भी हमने करके देखा है यहाँ पे. राइट? Yeah. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट टिल नाउ? No. ओके, नाउ आई एम मूविंग. वन मोमेंट. I have another problem for you. Okay, just Okay. giving you this problem के लिए तो मुझे yep, I got it. चलो giving you. कहाँ गया जी ये? अच्छा, एक सेकेंड. Can you see this? प्रॉब्लम रीड करो, मैं इमेज दे रहा हूँ आपको. The figure given हाँ, alongside फिगर दे रहा हूँ. Go for shows this. the image of a clock as seen in a plane mirror. The correct time is मतलब ये अभी टाइम एक्चुअल क्लॉक में इतना टाइम है, इसको मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम बताएगा ये? We have to find that. अभी तो 2:20. 2:35 है. अभी तो 2:35 है. Yeah. मिरर में देखें तो कितना रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या दिखेगा हमको? टाइम क्या हो रहा है? 9:25. 9:25. कैसे? Because अगर mirror में because in the mirror the image it's ulta, so if आप मेरे आपके स्क्रीन पे एनोटेशन का ऑप्शन आ रहा होगा. ऑन द टॉप यू कैन सी व्यू एनोटेशन करके ऑप्शन आ रहा है कहाँ? आपके स्क्रीन पे, जूम स्क्रीन पे ना ऊपर में देखो. Okay, yeah. वहां से Annotate. एनोटेट पे क्लिक करो और इस पे ड्रॉ करो किधर बनेगा. वेयर यू आर टॉकिंग. इस घड़ी पे बना दो, किधर दिखेगा मुझे? क्या बनाना क्या है? दैट मींस द लाइन वेयर इट विल रिफ्लेक्ट. ओके, आई विल डू मतलब फॉर यू. ओके, आई विल डू. मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आवर हैंड है वो यहाँ पे ऐसे ओ दिखेगा अच्छा, ओके. और जो मिनट हैंड है वो हमको ऐसे दिखेगा. राइट? या किसी का रिफ्लेक्शन यही होगा ना. यप If you see the reflection will come like this, correct? So it will give me the timing of 9:25. Right? या Okay, चलो good. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. एक प्रॉब्लम और किया जाए. हाँ. Okay, this problem is VVI. Very very important problem. बोर्ड में बहुत बार आ चुका है ये, एंड एग्जाम में भी आता है. And this is VVI of reflection. Go for it. आप इसको ड्रॉ करो, मुझे व्हाट्सएप करो. Can you do it right now? ओके, 1 second. What do they mean by placed at right angles? Like the mirrors make a 90-degree angle. यस, मिरर, दो मिरर को मिला के 90 डिग्री बना दिया उन्होंने. मिरर वैसे बन सकते हैं ना. ओ ओके. ओ या एक वर्कशीट दी थी, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था. हाँ, तो ये वीवीआई प्रॉब्लम है. सॉल्व करो. I remember the answer is 60-degree. और आंसर याद कर लिया, सॉल्व कैसे होगा? नहीं, वो क्योंकि मैंने डायग्राम अभी रिसेंटली बनाया था ना, ओके, इसलिए याद है. ठीक है.
Can I just send you the Yes. diagram जो मैंने हाँ बनाया हाँ था? यस आप वही भेज दो, नो इशू। Because मैंने I think कल ही बनाया था, हाँ। ठीक है तो भेज दो, वही भेज दो, नो प्रॉब्लम। 1 second. उस वर्कशीट में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए थे टाइम वाले, क्लॉक वाले एक्चुअली। यस दिस इज द राइट थिंग, बट इसको आपने बनाया तो ठीक है, बट समझा है पहले कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन है, कम टू द क्वेश्चन हियर। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने इंसिडेंट रे ये लिया है, गुड, ठीक है, या ओके फाइन। मुझे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। तो इसने ये आपने इसको फर्स्ट मिरर मान लिया और ये आपका सेकंड मिरर हो गया, राइट? अब ये जो एंगल आया ये कैसे आया यहाँ पे? 60 कैसे आया? आपने बोला ना 60 डिग्री, राइट? so ये कैसे 60 आया? ये कैलकुलेशन मुझे बताओ। okay, so I've taken the given that angle विच between the एंगल? mirror आप and मार्क the कर सकते हो, आप एनोटेट करके मार्क कर सकते हो आप इसको। angle A. I've marked it as angle A. ओके हाँ, तो एंगल ए कितना आया आपको? 30 मिला है। एंगल एंगल ए भी 30 आया? नो, ये तो आपने लिखा हुआ है ना? गिवन है। कहाँ? नहीं, एंगल ए गिवन नहीं है। ओ दिस सॉरी, इज गिवन, नो, दिस इज गिवन, या ये गिवन है। सो अगर ये 30 है, हाँ that means angle A would be 60 because ठीक 90 है, minus, yeah, okay. ठीक है 60 लिख दिया, उसके बाद Then angle मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो 60 C आपने यहाँ marked here लिखा, that I've written. वेट, आपने जो 60 यहाँ लिखा वो कैसे 60 आप बोल रहे हो कि ये कैसे 60 है? मैं बोलता हूँ 45 है, ठीक है? देन हाउ यू विल प्रूव दैट नहीं सर ये 60 ही है? आई नो दिस इज राइट आंसर, बट मैं बोलता हूँ नहीं जी ये 45 होना चाहिए था। हाउ यू विल प्रूव दैट योर आंसर इज राइट? वो मुझे कैलकुलेशन बताओ। But okay. So the angle that I've marked is angle B. सारे एंगल्स एंगल्स लिखे, हाँ एंगल ए 60 आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया? The angle I've marked as angle B हाँ will be 30 because कैसे 30 आया वो? हाँ बोलो। 180 minus 60, which is angle A. 180 माइनस 60. तो 180 माइनस 60 30 थोड़ी ना आता है, वो तो 120 Oh, होता sorry, है। 180 minus 60 minus 90 क्यों 90 क्यों माइनस करेंगे? because the angles of the mirror, the angles of the mirror, right? तो ये क्यों लेंगे यहाँ पे? व्हाई वी विल कंसीडर दिस एंगल? Because हाँ बिकॉज both, how do I explain? अरे आपने सॉल्व किया तो एक्सप्लेन तो आप ही करोगे ना। Because both, वो है the हाँ line, विच लाइन? it's uh wait, let me mark it. This one, हाँ हाँ ठीक है, हाँ गुड। it's coming with, I mean, it's on both the mirrors. हाँ ठीक है, बोथ द मिरर्स पे है तो देन व्हाट? हाँ, so and both the angle at both the mirrors make is 90. नहीं वो ये भी एंगल है, ठीक है, देन आप 180 का कॉन्सेप्ट कहाँ क्यों ला रहे हो? मुझे ये पूछना है, Because 180। हाँ बोलिए, triangle बना रहा है. कहाँ ट्रायंगल बना रहा है ये? See the, wait, let me mark it. हाँ The मार्क कीजिए, is, यस गुड। I'm on a laptop, तो वो थोड़ा weird है. अब कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। So ठीक है तो ये this is ट्रायंगल making बनाया, a ओके। triangle and अब some मेरा of our क्वेश्चन, हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये, our, मेरा क्वेश्चन ये एंगल बी की क्या जरूरत थी आपको? क्योंकि वाई? हाँ इससे फिर we can tell what angle D is, which is ओके, ये equal to एंगल, अच्छा ये angle. एंगल डी बनाया है, ओके ठीक है। अच्छा उससे हम एंगल डी निकाल लेंगे। अच्छा उससे हम एंगल angle, एंगल डी की क्यों जरूरत पड़ी मुझे? so that we can tell what angle E is. नो एंगल डी की क्यों जरूरत पड़ी मुझे?
because it's equal to the angle we need to find out, right? And यस, क्योंकि so ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा सेकंड और मिरर वो के लिए, रिफ्लेक्टेड, हाँ और वो रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो जब तक इंसिडेंट एंगल नहीं मिलेगा सेकंड मिरर के लिए, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से निकालेंगे? दैट आई वांट फ्रॉम यू। मैं इतनी इंक्वायरी इसलिए कर रहा हूँ, आई नो आपने किया है दैट, बट द कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। दैट्स द या रीजन आई इंक्वायरी दिस मच। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आप करके जोड़ जोड़ के आपने बताया ना, राइट, एंड इट्स राइट, मैं कहाँ बोला हूँ गलत है, बट आई डू इन दिस वे बिकॉज ऐसा करने से जो आपके अंदर जो बातें हैं जो आप जानते हो वो चीजें बाहर निकलेंगी, एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर कि क्यों किया, कोई बच्चे तो ऐसे कर दिया, सर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, क्यों करना है हमको। इफ यू नो दीज थिंग्स, व्हाई, व्हाट, हाउ, तीन बातें अगर आप सीख लोगे ना, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, क्यों, क्या और कैसे, तब कहीं कोई, ना ही फिजिक्स में, ना ही मैथ्स में, ना ही बायो में, कहीं कोई दिक्कत, लाइफ में ही प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू नो अबाउट थ्री, कोई भी प्रॉब्लम जब भी आए ना, चाहे वो लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे यहाँ पे हो, थ्री थिंग्स ऑलवेज पूछना चाहिए अपने आप से कि व्हाई, क्यों है, क्या रीजन है, व्हाट, क्या है ये एक्चुअली, या आप पहले व्हाट पूछ लो देन व्हाई पूछ लो, ठीक है, जो भी करना है, एंड देन हाउ, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये थ्री थिंग्स अगर आती है किसी भी चीज में ना, देन यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर दैट? या चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया है, दैट इज गुड, गुड, ओके। So right now, I think for today I am done, but I would like to ask you something. Okay, या what is lateral inversion? सॉरी, What is lateral inversion? lateral inversion. Yes. Uh, it's when like okay, so an ये कोई बहुत when बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, that's why I'm asking, आपको आता होगा I छोटा think. सा है. Yes. So when a object, so for example, when you're holding a paper in the mirror where something's written on the paper, in the mirror it'll appear the other way around. Can you see that? इस लड़के ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया था, तो बॉय का तो लेफ्ट हैंड है, ये बॉय का क्या है, ये Left लेफ्ट hand, हैंड, बट but इमेज mirror में right hand है. राइट हैंड। सो लैटरल इन्वर्जन नथिंग बट उल्टा कर देना, राइट को Yeah, लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। yeah. तो ये मिरर की अच्छी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। एंड मुझे ये चीज जाननी है, एक चीज, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम, डोंट वरी। आपने एम्बुलेंस वगैरह तो देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखा नहीं होगा कभी, राइट? क्या? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, Oh, हाँ. ओके। एम्बुलेंस में ये देखो, ये एक एम्बुलेंस का मैंने पिक्चर यहाँ चिपकाया है, कैन यू सी दैट? इस पे ये एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है ऑलवेज, आपने नोटिस किया है? हाँ, हाँ, because जो हाँ, हाँ बोलो। because जो रोड पे मिरर्स होते हैं, रोड जब पे उन मिरर पे कहाँ होते हैं? मतलब like when you're turning right or left, sometimes there are हाँ, mirrors. हाँ ठीक है, या हाँ फिर मतलब कार के व्हीकल, व्हीकल, मिरर्स हाँ actually. ठीक है, ठीक है। Mostly it's targeted towards car mirrors. कार, बस, जो भी आगे जा रहा है, क्यों बाइक वाले को नहीं होगा? नहीं, बाइक व्हीकल्स पे जो मिरर्स होते हैं, हाँ, व्हीकल्स में जो मिरर होते हैं, हाँ ठीक है। उन उनके so that उन पे सीधा दिखे कि क्या लिखा है, and then they can make way for the तो वो ambulance, सीधा देख के क्या करेगा? so that they can move aside for the ambulance और to. और अगर ये नॉर्मल लिखा रहता सीधा ऐसे, एम्बुलेंस, तो नहीं पढ़ तो लेता आदमी? उल्टा दिखता मिरर में. यस, मिरर में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, करेक्ट। हम्म. तो देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाता कि बहुत से लोग, अब देखो, नाउ यू आर एजुकेटेड, यू आर लिटरेट, तो आप तो पढ़ लेते, उल्टा भी हो जाता तो कि एम्बुलेंस आ रही है, राइट?
बहुत से ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल, वो कभी पढ़ाई नहीं की होती। क्या है, Hmm. ट्रक ड्राइवर्स दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी फेल, बट फॉर देयर फैमिलीज, आई एम नॉट सेइंग कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, बट somehow some Yeah. reasons due to their families problems, बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ के एंड वर्क करना शुरू करते हैं बचपन से ही। बहुत लोगों को पढ़ने का Uh-huh. मौका नहीं मिलता है इन सोसाइटी, मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर, राइट। मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं समहाउ, जो भी रीजन रहा हो, मैं उसमें रीजंस पे नहीं जाता हूँ। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है वो तो मस्ती से चला रहा है अपनी गाड़ी, राइट। अब वो उल्टा देखेगा मिरर में तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या आ रहा है, राइट। Hmm. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गिव दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि मिरर में उसको सीधा दिखेगा तो एटलीस्ट वो समझ सकेगा कि ये एम्बुलेंस। उल्टा दिखेगा तो वो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, Hmm. ठीक है। सीधा दिखेगा तो कुछ हद तक, चलो पढ़ना नहीं आता, कुछ हद तक तो पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो ए बी सी डी जोड़ जोड़ के एम्बुलेंस ही बोलते देगा, ठीक है। लेकिन उल्टा लिखा है तो थोड़ा वो समझ पाएगा कि हाँ ये एम्बुलेंस ही लिखा हुआ, एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। और Hmm. पीछे से तो आज के डेट में एम्बुलेंस टाइप की बहुत सारी व्हीकल्स मार्केट में घूमती हैं, जरूरी नहीं कि वो एम्बुलेंस ही हो, ठीक है। तो एम्बुलेंस पे ही लिखा रहता है एम्बुलेंस, Yeah. ओके। Hmm. तो पुलिस की गाड़ियों पे क्यों नहीं लिख देते उल्टे में पुलिस? Because पुलिस में की गाड़ियों पे usually siren बज रहा होता है। सायरन तो इसके ऊपर भी लगा होता है, देखो सायरन लगा हुआ है तीन तीन। हाँ, पर मे तो बी सर आप हम उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, पुलिस की गाड़ियों पे, पुलिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, उनको भी जाना रहता है। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां होती हैं, राइट। उनके उल्टा नहीं लिखा होता, इस पे क्यों लिखा होता है सिर्फ एम्बुलेंस? because हाँ बताओ बताओ, सोचो सोचो। uh, फिजिक्स जब तक सोचोगे नहीं तब तक नहीं होगा। uh, नहीं, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियों पे होता है उल्टा, सॉरी आई एम रॉन्ग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे भी, आई विल जस्ट शो यू, पुलिस पे नहीं होता शायद, फायर ब्रिगेड पे है। यू कैन सी हियर, because सी दैट। maybe पुलिस जो वो है पढ़ना easier होगा than ambulance। पुलिस को पढ़ लेगी और वो किसी का पीछा कर रहा है तो वो भाग जाएगा ना पहले। हाँ, okay। तो उल्टा दिखे तो ज्यादा बेटर है। अगर पुलिस किसी का पीछा कर रही है और उसको उल्टा दिखे तो वो समझेगा नहीं ना कि पुलिस ही आ रही है। Hmm. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। पुलिस की गाड़ियों पे जनरली नहीं देते हैं, इट्स ओके, बट बिकॉज पुलिस नॉर्मल भी पेट्रोलिंग करती रहती है एंड दे डोंट हैव दैट मच हरी ऑलवेज, उनको वो Yeah. हरी की जरूरत नहीं है। बट फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, यहाँ पर लाइफ का सवाल होता है। अब कहीं आग Hmm. लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है तो किसी ने इसको पास नहीं दिया, आपने कभी सुना है इसको जाते हुए कभी बगल से? हाँ, कैसे आवाज करती है? बहुत loud। इट्स लाउड, बहुत ज्यादा शोर करते हुए जाती है, ओके। एंड इसको स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर ये सायरन बजा के जा रही है एंड इफ यू विल नॉट गिव द स्पेस, यू विल गेट फाइन, ह्यूज फाइन। जेल भी होती है आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं, आई डोंट हैव द आइडिया, बट मैंने तो सुना है इफ यू विल नॉट गिव द पास टू द एम्बुलेंस और द फायर ब्रिगेड, अगर वो सायरन बजा के जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इफ दे आर मतलब वो व्हीकल पे सायरन बज रहा है उनका और आपने अगर पास नहीं दिया है तो ह्यूज फाइन भी होगा, जेल भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज द Hmm. थिंग, ओके दैट्स फाइन। तो हमारा वो पार्ट नहीं था, हमें बस जाना था कि उल्टा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, राइट। एंड लैटरल इन्वर्जन जो है वो लेफ्ट टू राइट कर देता है, राइट टू लेफ्ट कर देता है। हमें बस इतने से कॉन्सेप्ट से मतलब था, एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट यू नो दैट, राइट। तो मैं आज टाइम क्या हो, सॉरी, तो टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो मैं आगे आपको इसमें नहीं बताता हूँ अभी, ओके, बिकॉज टू मेनी कॉन्सेप्ट्स आई हैव टू टीच यू, ओके। और बहुत सारे Hmm. न्यूमेरिकल्स भी इसमें करने हैं, सो आई एम लिविंग टिल टुडे हियर दिस मच। अभी इसमें देखो क्या क्या करना है बता रहा हूँ मैं। अभी हम लोग प्लेन मिरर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, देन वी हैव टू सी स्फेरिकल मिरर्स, मैंने वहां टच ही नहीं किया अभी, ओके। स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम वगैरह बनाया है आपने? Uh, रे yeah। डायग्राम, यस, सो Yeah। रे डायग्राम भी हमें देखना है। एंड अगर रे डायग्राम बनाया है तो आप मुझे रे डायग्राम
एक करके कोई भेज देना स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, किसी का भी, ठीक ठीक है। है। हाँ, आई विल जस्ट वेरीफाई कि इसमें क्या किया आपने। एंड उसके बाद मिरर, अच्छा मिरर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? ओके वेट, मुझे याद है। 1/f is equal to 1/v plus 1/u. एंड व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/u minus 1/v. नहीं, 1/v minus 1/u. Sorry, 1/v minus 1/u. हाँ. ओके, एंड मैग्निफिकेशन, Oh, मैग्निफिकेशन wait. ऑफ मिरर, Mirror का हाँ उसका क्या फॉर्मूला होता है? image height by object height. ओके, Yeah, हाँ. ठीक है। एंड डू यू नो दिस फॉर्मूला और नॉट? Which one? Magnification is equals to h dash by h, that is image हाँ. height by object height, and हाँ. minus v by u. V/u. हाँ. तो ये किसका है? मिरर का है, लेंस का है? Lens. नहीं, ये मिरर के लिए। Oh, ओके, sorry. हाँ. एंड Yeah. ये हो जाएगा लेंस के, V/u. नीचे वाला Right. लेंस, Lens. राइट। ओके, नहीं कोई इशू नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने बाकी हैं इसमें। सो मेनी न्यूमेरिकल, सो मेनी थिंग्स आर देयर, मैं वन बाय वन आपको इसमें कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो जस्ट वांटेड टू नो हाउ डू यू लाइक द क्लास, क्या लगा इसमें? Uh, it was चलो, ओके, nice. so you can tell me the feedback later. Second thing, where is your maths homework? My maths. Yes, मैंने the Oh, questions, yeah, I've done most of them. I have not done the the seventh one and the fifth one. चलो 2 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, बाद बाकी सारे हो गए। हाँ. ओके, ठीक है, तो मुझे भेज देना जब हो गए तो I भेज। was in the middle of the sixth one, इसलिए मैंने अभी भेजा कोई बात नहीं. नहीं, अच्छा ठीक है, तो करके भेज दो, नो प्रॉब्लम, करके भेज दो, ठीक है, नो इशू, Yeah. फाइन, ठीक है। चलो, सो after the class you can just I will share the files and videos, okay, and Yeah. I will talk to your mother, and then we will decide about the fees, okay. Chalo, okay, Hmm. bye, take care. Yeah.